Participants of global financial system. If global financial system is considered, it is more complex compared to a country's financial system. In a country's financial system, commercial banks are involved, insurance agencies, financial institutions, and various regulatory authorities are also involved. Uh, but when we consider global financial system, the complexities are more because of many institutions are involved, many nations are involved into that, different countries are involved, the culture is different, and because of all these things, the global financial system is more complex. Now, today we'll be learning various participants of global financial system. First of all, we'll understand which international institutions are there in global financial system. Uh, the major financial institutions or major international institutions which are there are International Monetary Fund, World Bank, World Trade Organization, Bank for International Settlements, Institute of International Finance. These are the major international institutions which are involved or which are the participants of global financial system. After this, there are several government institutions like financial ministries of various countries, tax authorities of every nation, central bank of every nation, securities and exchange commission. Like this, many government institutions are also involved in global financial system. Along with government institutions, some private participants are also there, like commercial banks, pension funds, hedge funds, etc. And regional institutions are also there, like Eurozone, NAFTA, CIS, etc. So before we start with global financial system, first of all, we'll try to understand the financial system of India. First, we'll understand financial system of India, then we will discuss about the global financial system. Financial system of India. See, students, in our day-to-day life, we frequently visit various financial institutions. We frequently visit on a daily basis, like commercial banks are there. आप में से ऑलमोस्ट सभी का बैंक में एटलीस्ट सेविंग अकाउंट तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ फिक्स डिपॉजिट आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी की वहां पे होगी ही. जो बिजनेस से जुड़े लोग हैं उनके बिजनेस का करंट अकाउंट किसी न किसी बैंक में होगा ही. सो इन आवर डे टू डे लाइफ वी फ्रिक्वेंटली विजिट कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स के चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी नेशनलाइज बैंक्स की ब्रांच हो, या एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसी प्राइवेट बैंक्स की ब्रांच हो, we frequently visit the banks, right? So banking or banking segment or banks is a sector. It is part of financial system of India. Commercial banks, cooperative banks, banking sector is integrated part of Indian financial system. दूसरे दूसरे इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें जिनसे हमको काम पड़ता है, लेकिन बैंकिंग से दोज इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन. जैसी कौन सी इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी की पॉलिसी कोई ना कोई हम लोगों ने खरीदी ही होगी, राइट? और भी जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की बहुत सारी कंपनीज है जिनका हमको काम पड़ता है, जिन जिन जहां तक हमको जाना पड़ता है. भले ही बैंक्स के जैसा फ्रीक्वेंसी वहां जाने की कम होगी, एलआईसी के ऑफिस में आप हो सकता है साल में एक आध बार ही जाते होंगे, लेकिन एलआईसी के साथ कुछ ना कुछ तो काम हम लोगों को, या किसी ना किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कुछ ना कुछ तो काम हम लोगों को होता ही है. एक सेगमेंट जो हम लोगों ने देखा फाइनेंशियल सिस्टम का, वो है बैंकिंग. दूसरा सेगमेंट जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया वो है इंश्योरेंस सेगमेंट. एंड वन मोर सेगमेंट विच इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दैट इज स्टॉक मार्केट. That is stock market. Stock market, we all know Bombay Stock Exchange, Asia's oldest stock exchange. National Stock Exchange is again leading stock exchange of India. There are several stock exchanges जहाँ पे हम लोग किसी कंपनी के शेयर्स में अगर हमको इन्वेस्टमेंट करनी है तो थ्रू दीज एक्सचेंजेस वी कैन इन्वेस्ट, या हमारी इन्वेस्टमेंट अगर हमको विड्रॉ करनी है तो हम लोग वो विड्रॉ कर सकते हैं. सो अ वेरी good option for investment.
रिस्क है लेकिन रिटर्न भी उतना ही, जिस सेक्टर में आपको मिलता है, दैट इज नोन एज स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंजेस। तो सी फ्रेंड्स, ये तीन मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनका हमको ज्यादा काम पड़ता है एज एन इंडिविजुअल, एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया। बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज एंड स्टॉक मार्केट, सब ब्रोकर्स, इनका हमको फ्रीक्वेंटली काम पड़ता है। एंड ये तीनों जो चीजें, ये इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम का इंटीग्रेटेड पार्ट है। नाउ देखो, बैंकिंग सेक्टर की अगर बात की जाए तो देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ बैंक्स, नेशनलाइज बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स आर आल्सो देयर। इन सारे बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए, कोई गड़बड़ नहीं हो रही हो या इंश्योर करने के लिए, इंडिया में एक अथॉरिटी है। उस अथॉरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल to provide guidelines to all the banks and to monitor the functioning of each and every bank। कहा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, मॉनिटर करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। आरबीआई अगर रेपो रेट कम कर देती है तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को हमारी एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है, या हम लोगों को जो बैंक लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। सो आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सारे बैंक्स को रेगुलेट करती है, सारे बैंक्स को चैनलाइज करती है। इंश्योरेंस सेगमेंट की अगर बात की जाए, इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आईआरडीए इज देयर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईआरडीए इज देयर। अदर देन आईआरडीए, स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, स्टॉक एक्सचेंजेस की अगर बात करें, शेयर मार्केट की अगर बात करें, तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो सी फ्रेंड्स, वी हैव सीन most important segments of इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स। और भी बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स है, बट राइट नाउ वी विल ओनली सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इज बैंकिंग सेक्टर, जिसको आरबीआई रेगुलेट करती है। सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्टर इज इंश्योरेंस सेक्टर, जिसको आईआरडीए कंट्रोल करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्टर इज स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जिसको सेबी रेगुलेट करती है। अभी देखो, ये तीन सेगमेंट्स हो गए, तीनों की रेगुलेटरी अथॉरिटीज या एपेक्स बॉडीज हम लोगों ने देख ली। अभी इन तीनों के अंदर कोऑर्डिनेशन रखने का काम कौन करता है, या इन तीनों को भी डायरेक्शंस या गाइडलाइंस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज एपेक्स बॉडी इफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड। राइट नाउ मिसेस निर्मला सीतारमन इज द फाइनेंस मिनिस्टर, and Ministry of Finance is the apex body if Indian financial system is considered. RBI is there to regulate banking sector, IRDA is there to regulate insurance sector, and SEBI is there to regulate stock market. So this is a very short description of Indian financial system. देखो फ्रेंड्स, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हम लोगों को अभी समझ में आ गया है। नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की अगर बात की जाए, ओके, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की अगर बात की जाए, तो जैसे इंडिया में सिस्टम है, वैसे हर कंट्री का अपना अपना सिस्टम है फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, टैक्स अथॉरिटीज है, राइट, एक्सचेंज कमीशन होते हैं, स्टॉक मार्केट से अपनी अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने स्टॉक मार्केट से, उनको रेगुलेट करने के लिए अपनी अलग एक अथॉरिटी है हर कंट्री की। तो अगर हम ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, तो ये सारी कंट्रीज का ये सारा सिस्टम उसमें आ जाता है। ये सारी कंट्रीज का सारा सिस्टम मतलब मेनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, राइट। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बाद में कुछ प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स भी आते हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स है, कुछ फंड्स है, and कुछ regional institutions like Eurozone. So we'll begin, first of all we'll begin with the international institutions. See, ये बात आप लोगों को तो क्लियर हो गई होगी। If we call participants of global financial system, if we say if participants of global financial system, then there are four major institutions. First, international institutions. Second, government institutions. Third one, private participants. And fourth one, regional institutions like Eurozone, SARC, ASEAN. These regional institutions are also involved into this.
सो सी फ्रेंड्स, चार चीजें हैं, चार चार मेजर पार्टिसिपेंट्स है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स एंड रीजनल इंस्टीट्यूशंस। अभी एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। कौन सी ऐसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहला नाम कोई आता है तो वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इट इज IMF। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड is an organization that aims to promote global economic growth and financial stability. It encourages international trade and it tries to reduce the poverty. So that is international